નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું પારુલ આહિર. આજે આપણે વાત કરીશું બાળકોના એજ્યુકેશનની, બિકોઝ તેના લીધે જ તેઓનું ફ્યુચર નક્કી થતું હોય છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી, આમ તો 1 વર્ષ કહી શકાય કે શાળાઓ બંધ છે અને બાળકો ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તેવામાં વિદ્યાર્થીઓ સહિત તેમના વાલીઓને પણ તેમના શિક્ષણને લઈને અનેક ચિંતાઓ સતાવી રહી છે અને જામનગરના વિદ્યાર્થીઓને પણ અનેક કન્ફ્યુઝન છે. તેવામાં ખબર ગુજરાત દ્વારા એક પહેલ કરવામાં આવી છે અને જામનગરની વિવિધ શાળાઓમાં કયા પ્રકારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે અને કોવિડના સમયમાં શું પ્રોસેસ છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. આજે આપણે વાત કરીશું જામનગરની જૈન એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત રાધિકા એડ્યુકેરની. રાધિકા સ્કૂલના સ્ટાફ દ્વારા દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓના ઘરે વિઝિટ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે શાળાના પ્રિન્સિપલ શિવાની આચાર્ય અને સ્કૂલ સ્ટાફ. તેમના પાસેથી આ હોમ વિઝિટને લઈને વધુ માહિતી મેળવીએ. નમસ્તે. રાધિકા એડ્યુકેર સ્કૂલ 7 વર્ષથી એમ કે 2015થી જામનગરમાં નર્સરી અને ગ્રેડ 10ના સ્ટુડન્ટ્સને શિક્ષણ આપી રહી છે. રાધિકા સ્કૂલ CBSE એફિલિએટેડ છે અને અમારો મેઇન મોટો એ છે કે લર્નિંગ દરેક બાળક માટે સેલિબ્રેશન રહે અને એટલા જ માટે આ હોમ વિઝિટ આવી કન્ડિશન્સમાં જે છેલ્લા 1.25 વર્ષથી છોકરાઓ સ્કૂલ નથી આવી શક્યા એ કન્ડિશન્સમાં અમે કરી. ओके, गुड मॉर्निंग. सो आज हमारे साथ है शिवानी मैम, प्रिंसिपल ऑफ राधिका एडुकेर स्कूल. मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बॉन्ड बिल्डिंग हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, 4 सालों से आई थिंक, तो ये बॉन्ड बिल्डिंग जो है आपके दिमाग में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और इसका मेन पर्पस क्या है मैम, हमें थोड़ा विस्तार में बताइए. એટલે કે કોઈ પણ બાળકના ઘરે તમે ટીચર્સ છે એ વિઝિટ કરે છે, જે ભણાવે છે એ જ વિઝિટ કરે છે અને બોન્ડ બિલ્ડિંગ એને એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે એનાથી થોડું ઇમોશનલ બોન્ડ જે છે એ વધે છે. હવે પ્રશ્ન અત્યારે કદાચ એવો થાય કે ઓનલાઈન ફોર્મમાં શું કામ, વાય ઇન ધ ઓનલાઈન ફોર્મ ઓર વાય ઇન ધ કરંટ સિનેરિયો બોન્ડ બિલ્ડિંગ, બિકોઝ એકબીજાથી મળવાની પરમિશન અત્યારે નથી આપણને. એ કન્ડિશન્સમાં કઈ રીતના ટીચર્સને હોમ વિઝિટ અથવા બોન્ડ બિલ્ડિંગ કરાવો છો. તો મેઇન પર્પસ, મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ આ વખતનો અમારો બોન્ડ બિલ્ડિંગનો એટલા માટે ઇમોશનલ બોન્ડિંગ રહ્યો કારણ કે જ્યારે ટીચિંગ અને લર્નિંગની પ્રોસેસની વાત કરો તો એક ટીચર અને સ્ટુડન્ટ અથવા કોઈ પણ હ્યુમન બિઈંગ, બે હ્યુમન બિઈંગના રિલેશનની વાત કરો તો એમાં ટ્રસ્ટ અને રિસ્પેક્ટ ત્યારે જ આવે જ્યારે એક ઇમોશનલ બોન્ડિંગ હોય. તો ઇન દેટ કેસ વી એઝ રાધિકા એડ્યુકેર સ્કૂલ થોટ ઓફ હેવિંગ bond building as emotional building between the teacher and the student to improve this teaching at this time in the online fashion. જ્યાં દરેકને પ્રશ્ન છે કે મારું બાળક ખરેખર ભણે છે કે નહીં, અથવા ટીચરને પણ પ્રશ્ન છે કે ભણી શકે છે કે નહીં. એના માટે થઈને અમે એક ફર્સ્ટ સ્ટેપ એઝ લર્નિંગ એઝ સેલિબ્રેશન મોટો છે અમારો, તો એ પર્પઝથી અમે ફર્સ્ટ સ્ટેપ લીધો કે સ્ટુડન્ટ્સને ટીચર્સ મળે, જાણે, આ ટીચર છે એવું ખબર પડે અને સ્ટુડન્ટ પણ આવકારે ઘરે કે હા આ મારા ટીચર છે, એને હું આ દેખાડું અને હું સાંભળું પણ એને. સો ટ્રસ્ટ એન્ડ રિસ્પેક્ટ બિલ્ડ કરવા માટે અમે બોન્ડ બિલ્ડિંગ આ વખતે કરી ઇન ધ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન. So good morning sir. Good morning sir. सर, ये जो होम विजिट्स हो रही है, ये जो बॉन्ड बिल्डिंग हो रहा है,
वो आपके पर्सपेक्टिव से, एज अ पेरेंट पर्सपेक्टिव, आपको क्या लग रहा है कि कैसे हेल्पफुल कर रही है? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बॉन्ड बिल्डिंग सेशन बहुत अच्छा रहा है। स्कूल की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे ये पता चलता है कि स्कूल इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए। वो लोग हमारे घर आए, हम लोग से चाइल्ड के बारे में पूछा कि सारी स्टडी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, और इससे हमें भी बहुत विश्वास हमारा बढ़ जाता है कि स्कूल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम भी उसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर द स्कूल फॉर कमिंग एंड फॉर दिस होम विजिट। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। जो राधिका एजुकेशन स्कूल द्वारा ये बॉन्ड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, तो हमें इसका इम्पोर्टेंस ये दिख रहा है कि बच्चा इस कोरोना के मामले में, जैसे हम देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से बच्चा बाहर नहीं निकला है, दे हैड नेवर विजिटेड टू स्कूल, दे हैड नॉट सीन द फेस ऑफ द स्कूल। तो क्या हो रहा है कि बच्चा एक रूम में पड़ा है, ऑनलाइन सेशन ले रहा है। तो जो ये बॉन्ड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो राधिका एजुकेटर ने दिया, उससे बच्चा खिल उठा। जैसे कि पेरेंट्स हम ध्यान रखते हैं बच्चों का घर पे, लेकिन टीचर्स जब आए, होम विजिटर में मेंटर्स उनके आए राधिका एजुकेटर के, तो काफ़ी बच्चा खुश हुआ, वो दिखाने लगा मैम मैंने ये किया है, मैम मैंने वो किया है। द सेकंड इम्पैक्ट इज दैट मेरा दूसरा सन है, माई फर्स्ट सन इज स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज इन नर्सरी। सो वो नर्सरी वाला बच्चा मेरा ऐसे बोल उठा कि मुझे तो स्कूल जाना है। ये बॉन्ड बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे बच्चे को इतना एनकरेज करता है कि ये तो स्कूल चल के हमारे पास आ रहा है, उसे स्कूल सेकंड होम लगता है। और जब राधिका स्कूल एजुकेशन के मेंटर हमारे पास आए थे, तो हमने पूरा सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखा था, जैसे कि कोई डेंजर जोन नहीं था। हमने प्रॉपरली चेयर सैनिटाइज किए थे, सारा वगैरह जो कोरोना के रूल्स के हिसाब से हमने ये होम विजिट बॉन्ड बिल्डिंग किया था राधिका एजुकेशन स्कूल ने। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू राधिका एजुकेशन स्कूल कि दे आर मतलब ये लोग इतना देख रहे हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए फॉरवर्ड सोच रहे हैं। तो ये मैं एक हिसाब से कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन फॉर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड उसे हर तरफ से मोटिवेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं राधिका एजुकेटर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये लोग ने ये कदम उठाया है बच्चों के फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, सो अब सुनीता मैम से हम जानना चाहेंगे कि आप जब बच्चों के घर पे गए तो आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन से लिए थे, प्रोटोकॉल्स कौन से लिए थे, तो आप उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए मैम। Okay, truly speaking, in this current situation of pandemic, there is a need of revamp and the emotional bonding between the student and the teacher. For this purpose, we thought of this home visit, or we may say a bond building. उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए एंड बिफोर बिगिनिंग विद द बॉन्ड बिल्डिंग विजिट हमने पेरेंट्स की कंसेंट लिए, हमने ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया to ascertain whether any of the family members is still having any positive case, have they taken vaccination or no, or then finally we received more than 70% of responses from the parents and they were eagerly waiting to welcome us. For this we also keeping the COVID protocols in mind, we followed all the measures और हमारे स्कूल फ्रंट से पूरे RES स्टाफ को ऑलरेडी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। Before visiting, we also kept all the protocols in mind, and while visiting, we carried the hand sanitizer along with us, wearing masks and maintain social distancing. Somewhere we were feeling, initially we were feeling unsafe, then we found that the parents were also more concerned, और उन्होंने भी जैसे हम उनके घर पहुँचे हमारे हैंड सैनिटाइज करवाए, and the social distance also was very well maintained by the parents. And finally the bond building visit was conducted very smoothly, and it was a wonderful time with the parents and a good connection. Thank you so much. गुड मॉर्निंग सर। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो बॉन्ड बिल्डिंग हुई है वो टीचर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे हेल्पफुल हुई है बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने में? गुड मॉर्निंग सर। बॉन्ड बिल्डिंग विज़िट का जो कंसेप्ट है वो टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। प्रवर्तमान जो स्थिति चल रही है कोविड सिचुएशन, वो पिछले 1.5 साल से
चल रहा है, तो ये 1.5 साल में स्कूल भी ऑनलाइन मोड पे चल रहे हैं। तो ये 1.5 साल में हमने देखा है कि बच्चों में पढ़ाई के मामले में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमने देखे हैं, और ये चेंजेस कम करने के लिए राधिका एडुकेयर स्कूल ने बॉन्ड बिल्डिंग विजिट का कंसेप्ट शुरू किया। ये कंसेप्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमें अनुभव हुआ है, पेरेंट्स के घर पे जाकर जो अनुभव हमने किए हैं। उसमें मैं बताऊँ तो जब हम पहली बार बच्चे के घर पे गए तब वो हमें देखकर बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए, और अपने स्टडी रूम में जाकर वो 1.5 साल में जितनी भी जो भी चीज़ें बनाई थी उसने, वो हमें आकर दिखाने लगे, और चेहरे पे एक इतनी खुशी दिख रही थी कि वो हम इमेजिन नहीं कर पाए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि बच्चे घर पे इतने हमें खुश देखा इतने टाइम के बाद। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो जब हम गए तब पेरेंट्स ने वर्चुअल क्लासरूम बना के रखा था घर पर, मतलब वो फैसिलिटी दी थी। तो इससे ये साबित होता है कि पेरेंट्स जो है वो पढ़ाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। आगे मैं बताऊं तो जब हम फेस टू फेस बात कर रहे थे उनसे, तो एक ऐसा माहौल हो गया, अपनेपन का माहौल हो गया बात करते करते। तो पेरेंट्स को ये लगा कि ये सिचुएशन में हम अकेले नहीं हैं, और हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में राधिका एडुकेयर स्कूल और टीचर्स भी कुछ सोच रहे हैं, और ये सिचुएशन में बिल्कुल हम अकेले नहीं हैं, हमें साथ मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जब ऑनलाइन सेशन शुरू हुए विज़िट के बाद, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो रिस्पॉन्ड नहीं देते थे या तो कम देते थे, और जो लोग ज्वाइन नहीं होते थे वो स्टूडेंट भी ज्वाइन होने लगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हमें देखने को मिली है कि आफ्टर विज़िट बच्चों में भी एक उत्साह हो गया है। तो ये सारे अनुभव बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर तो मैं कुछ चंद अनुभवी मैंने आपके सामने रखा है। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रवर्तमान जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और बच्चों को जैसे हमने घर पे खुश होते देखा है वैसे खुश हम यहाँ पर देखें। थैंक यू। Hi, I am Gunjan Gudka from grade 5 and I am studying in Radhika Educare School. मैं ये वीडियो उन सारे टीचर्स के लिए बना रहा हूँ जो बॉन्ड बिल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इस वीडियो के जरिए मैं उन सारे पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज एज अ ड्यूटी उन लोगों ने इसमें पार्ट लिया। यह स्कूल के द्वारा आयोजित एक एक्टिविटी थी। जहाँ पैंडेमिक के चलते सारी स्कूल्स बंद थी, वहाँ हमारी स्कूल ने ये एक एक्टिविटी प्लान की, जिसमें कोई भी 2 मेंटर्स हमारे घर पे विजिट होते थे, हमारे डाउट्स, सजेशंस और कंप्लेंट्स क्लियर करते थे। जब मैंने अपने दोनों टीचर्स को देखा तब मैं बहुत खुश हुआ, और तब भी मुझे अपने ब्लैक बोर्ड, डेस्क, स्टडीज़ और सबसे फेवरेट स्कूल का एटमॉस्फेयर याद आ गया। और जो मेरे दोनों टीचर्स थे वो काफ़ी फ्रेंडली और कूल भी थे। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई भी टीचर्स से बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ। आई विश हमारी स्कूल जल्दी से रीओपन हो जाए। तो कोविड के चलते वो पॉसिबल नहीं है, बट आप हम सब मिल के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्कूल जल्दी से रीओपन हो जाए और हम वहाँ जा सके। थैंक यू, બાય। જૈન એડ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અને રાધિકા એડ્યુકેર સ્કૂલની સાથે જેમ કે એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું જોડાયેલી છું, મિસિસ શિવાની આચાર્ય, થેન્ક કરવા માગું છું કે આવી કન્ડિશનમાં, આવી જ્યારે એકાદ વર્ષથી સવા વર્ષથી છોકરાઓ અને એકેડેમિક્સ જે બધું હલી ગયું છે, એવી કન્ડિશનમાં ખબર ગુજરાતે એક પહેલ કરી છે સમજવાની કે સ્કૂલ્સ કઈ રીતના શિક્ષણ આગળ વધારવા માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ લે છે. સો વન્સ અગેન આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ ધ ખબર ગુજરાત ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ ટ્રાઇંગ ટુ રીચ આઉટ ટુ પીપલ થ્રુ દેમ ફોર વોટ વી આર ડુઈંગ. થેન્ક યુ. આપણે જોયું કે સ્કૂલના સ્ટાફ દ્વારા જ્યારે બાળકોના ઘરે વિઝિટ કરવામાં આવી ત્યારે પોતાના ટીચર્સને જોઈને બાળકોના ફેસ પર એક અલગ જ સ્માઇલ હતી, અને પેરેન્ટ્સને પણ એવું થયું કે આ સિચ્યુએશનમાં અમારી સાથે કોઈક છે,
કોવિડના આવા સમયમાં પણ રાધિકા એડ્યુકેરના શિક્ષકો બાળકોના ઘરે જઈને આ પ્રકારની જે પહેલ કરી છે તેને ખબર ગુજરાત પણ બિરદાવી રહ્યું છે. આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો.